Good morning, everyone. Today we are going to do a chapter from the integral calculus, and this chapter name is definite integral as a limit of a sum. In the previous lecture we have seen how can we solve the integral, either it is a rational, irrational or definite or indefinite. But we are doing all that by using the properties of the integrals. Okay, but today we are going to do the integration with the limit as a sum. So first let us see some formula which are very much useful in this chapter. So first one is 1 plus 2 plus 3 plus up to dot plus n. That is the sum of the first n term. We all know this formula from the class 12. That the sum of the first n term is equals to what? N plus 1 divided by 2. Now second one. 1 is square, 2 is square, 3 is square plus up to dot n is square. So what this value, girls? Just tell me. क्या होता है ये? What we have this value, girls? N plus 1 to n plus 1 divided by 6. Third one. 1q, 2q, 3q up to dot nq. So this one is n plus 1 divided by 2 का whole square. Okay. This one. Fourth. If we have the some values like this, sine alpha plus beta, sine alpha plus 2 beta plus up to dot n term. So this value is given by sine n beta divided by 2 divided by sine beta by 2 into sine alpha plus n minus 1 beta whole divided by, like this. Guys, have you read this formula in the trigonometry? Have you completed the trigonometry? Gus, do reply. As I'm audible or not? Have you completed this question? Okay, so you are very well known now. How can we find the sum of this for a series sequence in this way? Okay, now fifth one. अगर cos अल्फा है cos अल्फा प्लस बीटा cos alpha plus 2 beta plus up to dot atom. So we are going to use all these formula here in this chapter. Okay. So what is value, girls? Where if we have a cos, then sin n beta divided by 2 divided by sin beta by 2. But here we have cos. Here we have a sin. Now here we have a cos. Both these terms are equal in both the sum. Okay. And this is what? Cos alpha plus n minus 1 by 2 beta. So only you have to remember, when you have a sine term, then the formula you will just write here as sine. Okay, and if you have a sum of the cos terms, then you will write here in the cos alpha plus n minus 1 by 2, and then you have a beta. Those who have not proved this formula, please go through the trigonometry and just clear it by proving this. Okay, I am not going to prove this one here. Okay, so you all just do it. Now, today we are going to find by integration by the limit as a sum. So we have learned this little one in the class 12. So now we are doing it in the expanded form in here in the class BSc. So shall I erase, girls? Those who have not completed, just take a screenshot. So what the question today we are going to find is this one. Okay. Evaluate from the first principle. Okay. This question will ask in your exams of about that 6 marks. Okay. 6 marks के लिए एग्जाम में पूछते हैं. By the first principle
And the question is 0 to 1 x cube dx. Now, here in this integral, this is your definite or indefinite, girls? Just tell me. This is definite or indefinite? Yes. So, what's your the lower limit? What's your lower limit? 0. And the upper limit is 1. So, we have a difference between the lower limit and the upper limit. Okay. So, that difference is known as your h. No. So, here we are going to find what? A to B. So first we'll write the formula. What we know. Okay. So from the definition we have A to B fx dx. So you all learn this definition, this formula here. Limit h tends to 0. Okay. Then h bracket f a plus h f a plus 2h f a plus 3h plus up to dot dot plus f a plus nh, where a is your from here. Okay, a is your lower limit, b is your upper limit, and this h we have used in this formula here is your the difference of the lower upper limit to lower limit, that means b minus a. Okay, and divided by n. So here nh, you just write here nh. So this NH is your B minus A. Now we have to find the evaluation of this much. अगर इसको सिंपल हम करें इंटीग्रेशन से तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4. बहुत इजीली हम लोग इसको 1/4 लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं बना के हमें क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ये मेंशन रहेगा आपके क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व करना फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल या सिंपल. अगर इवैल्यूएट रहता तो हम लोग डायरेक्ट करके उसका आंसर दे देते, बट क्योंकि मेंशन क्या है फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी कैन नॉट डू लाइक दिस. ओके, सो वी प्रोसीड विद दिस फॉर्मूला ओनली. तो लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास. हेयर 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स कितना है, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0. पहले यहाँ पे देते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. तो 0 to 1 एक्स क्यू डी एक्स. तो हेयर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और एन एच की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1. अब यहाँ पे इसको बाद में अप्लाई करेंगे, पहले ये वाला फंक्शन देखते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं. तो देखो देयरफॉर 0 to 1 fx dx, limit h tends to 0 from here. Okay, then we have a h. Now f a plus h, a की वैल्यू कितनी है 0, h की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे f of h plus nh की वैल्यू पता है, h की वैल्यू नहीं. Okay, so I'll write here fh. Again a plus 2h, so a is again equals to 0, so I'll write f 2h, then f 3h plus up to dot dot f and h and then p. Now we are going to find what your h here. We have fx equal to what, x cube. So by applying this functional value, we'll write fh equal to what, h cube. F of 2h equal to what, 2qhq. 3h equal to what, 3qhq, like this. Okay, so now I'm going to write this formula here. So limit h tends to 0. Now h is taken the outside. Now what's your fh? What's your fh, girls? Is it clear now why I am writing here the hq? Now 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2q h, then 3q hq. So dot dot we have nq. Now HQ is common, so we can take the HQ outside.
सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ना h टू दी पावर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ पे हो गया 1q 2q 3q अप टू डॉट डॉट n का q. Now I have written that what is the formula for the sum of the cubic of this value. मतलब एक बार so I'm going to write that formula here only. Okay. यहाँ तक किसी को कोई डाउट गर्ल्स कैसे लिखना है? बी केयरफुल हो गया, आपको सब एक एक करके पहले लिख लेना, उसके बाद यू कैन जनरेट योर वैल्यू. ओके, फॉर्मूला बनाइएगा. देयरफॉर 0 to 1 fx dx, ये कितना हो गया मेरा, यहाँ से देखो. अब यहाँ पे x की जगह चाहो तो आप यहाँ पे x क्यूब हम डाल देते हैं. ये वैल्यू कितनी हो गई? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h टू दी पावर 4. नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4, देखो यहाँ से ये n स्क्वायर हो जाएगा, n plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं. हमारे पास वैल्यू किसका है? nh का वैल्यू है. तो जितने भी फंक्शन यहाँ h आएंगे ना या nh, तो h टेंड्स टू 0 है तो हमें ट्राई करना है कि इसको हम nh में कन्वर्ट कर दें. तो nh में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ से h स्क्वायर रह जाएगा और nh का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये n स्क्वायर के साथ हम इसको कंबाइन कर रहे हैं. यहाँ से 2 चला गया, ये वाली 2 दोनों को कंबाइन कर दिया. ब्रैकेट के अंदर मेरा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा है डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. अब ये वाले h स्क्वायर को क्या हम यहाँ अंदर ले जा सकते हैं, इस h को. ये वैल्यू कितनी हो गई? NH 1. यहां अगर हम NH को अंदर ले जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए NH प्लस H का होल स्क्वायर. ये वाले H स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं. क्यों? क्योंकि मुझे एक NH चाहिए, हर जगह जहां भी N है मुझे वहां NH चाहिए. तो इसको यहाँ पे अंदर ले गए ब्रैकेट के अंदर में, तो ये हमारा टर्म बन गया NH प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. नाउ व्हाट दिस वैल्यू इज, लिमिट h टेंड्स टू 0. अगेन वी हैव दिस इज अ 1, ये हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. नाउ टेकिंग द लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 बाय 4. यहाँ पे मेरा आंसर आ गया कि एक्स क्यू का अगर हम लिमिट एज अ सम फाइंड करते हैं तो वो मेरा क्या होता है 1 बाय 4 होता है. देयरफॉर एक्स क्यू डी एक्स 0 to 1 इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय 4. हियर इज द आंसर. तो इस तरह से बनाएंगे तभी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज फिर मार्क्स मिलेगा नहीं. क्लियर है कैसे बनाना है? एक क्वेश्चन मैं और बना रही हूँ साइन के फॉर्म में, ठीक है. उसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से करना. ये बता दूं, सभी का हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें? गर्ल्स एनी डाउट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन sin x dx a to b, इसको लिमिट दे देते हैं 0 to पाई बाई 2 कर देते हैं. 0 to पाई बाई 2 cos x dx from the first principle. तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही यूज करके फाइंड करेंगे. चलो बनाते हैं फटाफट हम लोग. क्या क्या दिया है, फॉर्मूला क्या, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं.
वी नो बाय डेफिनेशन। कौन बोलेंगे डेफिनेशन क्या है? जीरो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या है बोलिए? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। यस, हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो हियर क्या क्या दिया है? ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू पाई बाई टू, तो बी माइनस ए आ गया पाई बाई टू। सो दिस पाई बाई टू इज व्हाट योर एन एच। क्लियर है गर्ल्स? ये बी माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई टू। ये क्या हो गया आपका? एन एच का वैल्यू हो गया। तो ये बहुत ध्यान से रखना है ना। तो जीरो टू पाई बाई टू, यहाँ पे पहले भी एफ एक्स रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा बोलिए? लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बार, क्योंकि ए की वैल्यू अगेन जीरो है तो यहाँ पे एफ एच, एफ ऑफ टू एच, एफ ऑफ थ्री एच, एफ ऑफ एन एच नॉट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू को डाल दे रहे। क्या है मेरा? cos x dx इक्वल, ठीक है। तो अभी बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं एफ एच की जगह? अगर एफ एक्स मेरा cos x है तो एफ एच क्या हो जाएगा? cos h, cos 2h, cos 3h, cos n h। क्लियर है गर्ल्स? ओके। सो नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट h टेंड्स टू जीरो h। क्या है इसकी वैल्यू? व्हाट इज द सम ऑफ द टर्म्स? क्या है सम बताइए? अभी फॉर्मूला मैंने बताया साइन एन एच डिवाइडेड बाई टू। वहां तो बीटा था, यहाँ पे क्या है? एन एच है। तो साइन क्या हो जाएगा? एन एच डिवाइडेड बाई टू बाई साइन एच डिवाइडेड बाई टू, था ना यही? और क्योंकि फंक्शन कॉस में है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? कॉस होगा। कॉस एच प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू एच। यही है ना फॉर्मूला हमारा? किसी को कोई डाउट गर्ल्स? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? दिस इज योर फॉर्मूला, ओके, यू ऑल जस्ट फाइंड इट। सो दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट? द सम ऑफ द कॉस का जो टर्म आएगा हमारा, ये सीरीज, इस सीरीज का जो वैल्यू होगा वो आपका इतना होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट गर्ल्स इन एनी स्टेप? ओके ओके। द नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर जीरो टू पाई बाई टू cos x dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। हमें क्या करना है? एन एच बनाना है। अगर मुझे एन एच बनाना है तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एन एच की जगह तो बना सकते हैं पाई बाई फोर। एन एच की वैल्यू कितनी है? पाई बाई टू। एन एच बाई टू है ना, तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर, साइन एच बाई टू, कॉस एच प्लस एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये एच को अंदर ले आते, एन एच माइनस एच बाई, ठीक है। इस एच को क्या कर दिए? ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो ये एन एच माइनस एच डिवाइडेड बाई टू। नाउ पुट द वैल्यू हियर, एच साइन पाई बाई फोर। व्हाट इज साइन पाई बाई फोर गर्ल्स? बोलिए। अगर आप चाहो तो लिखो, अभी नहीं तो उसको साइन एच पाई बाई फोर ही छोड़ देते अभी।
ठीक है, तो ये एक वैल्यू मुझे मिल गया, तो हम इसको क्या करें, यहाँ रख रहे साइन पाई बाई 4। h है मेरे पास, देखो साइन h/2 है, तो यहाँ भी मुझे h/2 चाहिए ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए मुझे, साइन h/2, तो डिवाइडेड बाई h/2 चाहिए। तो अगर ये वाले h को मैं नीचे ले आऊं तो मुझे 2 ऊपर चाहिए होगा, तो उस 2 को ऊपर लाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा इंटू 2। तो ये h को चला गया नीचे और यहाँ पे ये आ गया 2। 5 मिनट, 5 मिनट बस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर, द cos, बोलिए h प्लस, फिर nh की जगह पे क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस h/2 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। ये मेरा क्या है h/2। गर्ल्स इसको बनाइए आगे। इतना बदमाश है, चिड़िया उठा देते हैं, फिर गिरा देता है। So what you are getting us, क्या मिला आप लोगों को, have you solved it or not? So sin pi by 4 limit h tends to 0. So what you are getting here, what do you have this value girls, 2. Okay, next, so इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके लिखते हैं। तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू लिमिट h tends to 0 1 डिवाइडेड बाय sin h/2 डिवाइडेड बाय h/2, ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव अ लिमिट h टेंड्स टू 0, ये याद है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या आ गया पाई बाई 2, मतलब हो गया आपका 1, तो पाई बाई 2 प्लस h, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2h माइनस h, ये आ गया आपके कॉस में ये फंक्शन, ठीक है। तो ये कितना हो गया बता दो, ये हो गया आपका 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4, ये कितना हो गया 1, so here we have a 1, okay, so pi by 4 2, then we have this value as a 1, now what this value girls, limit h tends to 0, तो ये 0 हो गया cos pi by 4, cos pi by 4, so what this value is 2 into, बोलिए 1 by root 2 into 1 and then 1 by root 2, so this is what 1 by 2, और ये ऊपर में 2 है हमारा ऑलरेडी, so this is equals to 1. Clear? Clear? So this value is equals to 1. So here we are getting the 0 to pi by 2 cos h dx is equals to what? 1. So here is the answer. Okay? बस इसके बाद
का जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में वो आप सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बस इसी दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, किसी में आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा, किसी में लॉगरिथम मिलेगा। तो यू ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन कि हाउ कैन वी सॉल्व द इंटीग्रेशन बाय द लिमिट एज अ सम और फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, कहीं 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 पे इसको लिखता है लिमिट एज अ सम और कहीं कहीं लिखता है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो समझ में आ गया है? तो आगे कर लोगे आप लोग? ओके, आज ये ला कंप्लीट कर लीजिए, देन नेक्स्ट डे विल डू द रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन के चैप्टर पे चलेंगे हम लोग और उसमें देखेंगे कैसे हम लोग फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ओके, थैंक यू गर्ल्स।